السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز اور میں ہوں احسن رضا۔ سچ نیوز کی جانب سے تمام اہلیان وطن کو جشن آزادی مبارک۔ اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اور ان کی آل کے صدقے میں وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ جشن آزادی پر وزیر اعظم عمران خان نے کام کو بڑی خوشخبریاں سنا دی۔ کہا کہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، اب بجلی سستی ہوگی۔ 2 سال مشکل گزرے، اب حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ آپ سب کو میں پاکستان کی 74ویں یوم آزادی کی مبارک دینا چاہتا ہوں۔ یہ پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک عظیم خواب کا نام تھا، اور وہ خواب تھی ہمارے فاؤنڈنگ فادرز قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی، اور وہ خواب یہ تھی کہ ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا، اور دوسری طرف اس ریاست کے اندر قانون کی بالادستی قائم کرنی تھی، جدھر سب انسانوں کے حقوق ہونے تھے۔ جو ہم نے فیصلے کیے، آج ہمیں اللہ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے کہ کرونا کے کیسز بھی نیچے آ گئے ہیں اور ہماری معیشت بھی اوپر جانا شروع ہو گئی ہے۔ 2 سال بڑے مشکل ہمارے 2 سال گزرے ہیں۔ اس کے بعد جس طرح ہماری معیشت اٹھنی شروع ہوئی ہے، مذاکرات چل رہے تھے گورنمنٹ کے اور انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے، ہماری اگریمنٹ ہو گئی ہے، ان سے معاہدہ ہو گیا۔ اس سے جو بجلی کی جنریشن کی قیمت ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ فائدہ ہماری انڈسٹری کو بھی ہوگا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں عوام کو بھی ہوگا۔ ملک بھر میں جشن آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ ایوان صدر اسلام آباد میں مرکزی تقریب منعقد کی گئی۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کی جارحیت کے جواب میں امن کا پیغام دیا۔ آسمانوں کو چھوتے یہ کوہسار ہے، اور ہنسی ساری دنیا سے گلزار ہے، تیری ہر ایک وادی ہے جیسے دلہن، اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی۔ صدر پاکستان عارف الوی نے پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر قومی ترانہ پڑھا گیا۔ صدر مملکت عارف الوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان نے بھارت کی جارحیت کے جواب میں امن کا پیغام دیا۔ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ سی پیک سے خطے میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ ہندوستان نے اپنی نئی تاریخ رقم کرنے کی کوشش کی ہے، پرانی تاریخ کو مٹا کر نئے اوراق اس میں ڈالنا چاہتے ہیں، جھوٹ سچ کے ساتھ، اور نتیجہ یہ ہے کہ مائنورٹیز کے حوالے سے ان کا جو سٹیزنشپ ایکٹ ہے وہ، اور رجسٹریشن ایکٹ آسام کا، اس نے وہ بات شروع کی جس کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ بجائے آپ کے ملک نے کیا کیا، آپ نے ملک نے یونائٹ کیا اور یونائٹ کرنے کی کوشش کی۔ کشمیر کے معاملے میں ہم کشمیری بھائیوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کا مقدمہ لڑتے رہیں گے۔ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے آپ کو خود کہا ہے کہ ہی از دی ایمبیسڈر آف کشمیر ٹو دی ورلڈ۔ انہوں نے کہا کہ قیام پاکستان کے بعد مملکت کو بہت سے چیلنجز کا سامنا رہا، قوم نے آزمائشوں سے گزر کر بہت کچھ سیکھا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کورونا کا حملہ ہوا، پوری دنیا لاک ڈاؤن کی طرف گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے فیصلہ کیا کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، غریبوں کی فکر کرتے ہوئے جزوی لاک ڈاؤن کیا جو کامیاب رہا۔ عارف الوی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے ہزاروں جانوں کی قربانیاں دیں۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل طلب ہے۔ سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر پر بحث تاریخی تھی، یہ پاکستان کی خراج محاذ پر بڑی کامیابی تھی۔ نئے پاکستانی نقشے کا اجرا بہت بڑا کام ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر اطلاعات شبلی فراز سمیت وفاقی وزراء اور معاونین خصوصی بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے یوم آزادی پر سول ایوارڈز کا اعلان کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اعزازات آئندہ سال 23 مارچ کو دیے جائیں گے۔
वतन अजीज के यौम आज़ादी पर जहां शहर शहर जश्न का एहतमाम किया गया, वहीं सदर ममलिकत ने सिविल अवार्ड्स का ऐलान भी किया है। जिन अहम 6 शख्सियात को निशान इम्तियाज देने का ऐलान किया गया है, आर्ट के शोबे में सादकैन नकवी, प्रोफेसर शाकिर, मरहूम ज़हूरुल हक और आबदा परवीन, जबकि अदब में डॉक्टर जमील जाल भी शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर साजिद बलोच और नईमुल्लाह डार को सितारे इम्तियाज से नवाजा जाएगा। अदाकारा बुशरा अंसारी, तलत हुसैन, इमरान कुरैशी, सुल्ताना सदीकी को भी सितारे इम्तियाज देने का ऐलान किया गया है। इसी तरह अदाकार हमायूं सईद सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी पाने वालों में शामिल होंगे। गुलकार मोहम्मद अली शैकी, अली जफर, हिना नसरुल्लाह को भी सदारती अवार्ड का ऐलान किया गया है। मौलाना तारिक जमील को भी सदारती अवार्ड से नवाजा जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीन के यिंग यांग और ली फिंगरोन के लिए सितारा कायद-ए-आज़म अवार्ड, जबकि फैसल ईदी को तमगे इम्तियाज दिया जाएगा। अनवारुल हसन गिलानी और आसम महमूद जा को हिलाल इम्तियाज देने का ऐलान किया गया है। जश्न आज़ादी के मौके पर बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज निशान पाकिस्तान अता किया गया। एजाज इस्लामाबाद में हुर्रियत रहनुमाओं ने वसूल किया। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को निशान पाकिस्तान का एजाज दिया गया। ये एजाज पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में एक खुसूसी तकरीब में अता किया। ये एजाज इस्लामाबाद में हुर्रियत रहनुमाओं ने वसूल किया। रवा माह वजीर आजम इमरान खान ने 14 अगस्त को बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को निशान पाकिस्तान देने का ऐलान किया था। 29 सितंबर 1929 को पैदा होने वाले 88 साल सैयद अली गिलानी मकबूजा कश्मीर पर 72 साल से जारी भारतीय कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद को तवाना आवाज हैं। इसके साथ ही यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। इसके बाद आपको बताएं कि कौम जश्न आज़ादी इस अज़्म के साथ मना रही है कि बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार और मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए कोई दकीका फरोगज़ाश्त न रखा जाएगा। मादरे वतन को अजीम से अजीम तर बनाने का आज़म पाकिस्तान भर में जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले सब हिलाली परचमों और हरी झंडियों की बहार है। मुल्क की फिजाएं जीवे जीवे पाकिस्तान और कौमी नगमों से गूंज उठी। बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों के चेहरे फरते जज्बात से जगमगा रहे हैं। दिन का आगाज मसाजिद में मुल्क को कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं के साथ हुआ। इस मौके पर उलमाए कराम, मशाइख इज़ाम और मुफ्तियान कराम ने मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के हक में भी खुसूसी दुआएं की। जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज सुबह सवेरे इस्लामाबाद समेत चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई, जिसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। विफाकी वुज़रा, सिविल और आस्करी क़यादत ने भी तकरीब में शिरकत की। मज़ार कायद पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर एजाजी गार्ड के फराइज संभाले। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कमोडोर मुश्ताक अहमद तकरीब के खसूसी मेहमान थे। वजीर आला और गवर्नर सिंध ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा पढ़ी। सिंध असेंबली में भी तकरीब हुई। मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई और पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाले। जनरल ऑफिसर कमांडिंग लाहौर तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। वजीर आला ने हजूरी बाग में परचम कुशाई की। कोयटा में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब बलूचिस्तान असेंबली के सब्ज़जार पर हुई। वजीर आला जाम कमाल खान ने कौमी परचम लहराया। गवर्नर हाउस और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद हुई। पेशावर में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब पुलिस लाइन्स में हुई। वजीर आला महमूद खान ने परचम कुशाई की। वजीर आला ने यादगार पुलिस शोहदा पर फूल चढ़ाए।
आजाद कश्मीर में भी पाकिस्तान का यौम आजादी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में हुई, जिसमें सदर आजाद कश्मीर मसूद खान ने परचम कुशाई की। इस मौके पर वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान का कहना था कि मदीना की रियासत के बाद सबसे बड़ा इनाम मुसलमाना ने बरे सखीर के लिए पाकिस्तान है। गिलगित बाल्टिस्तान में भी मुल्क का यौम आजादी मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मरकजी तकरीब चिनारबाग गिलगित में हुई। निगरान वजीर आला मीर अफजल खान ने परचम कुशाई की और यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर वजीर आला ने पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे की नकाब कुशाई भी की। मकबूजा कश्मीर से आपको खबर दें कि मकबूजा वादी में पाकिस्तान का यौम आजादी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। कश्मीरी कर्फ्यू तोड़कर आजादी का जश्न मनाने निकल आए। श्रीनगर में पाकिस्तानी परचम थामे नौजवानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के यौम आजादी को वादी में यौम तशक्कुर के तौर पर मनाया जा रहा है। वादी में यौम आजादी को जश्न आजादी के तौर पर मनाने के पोस्टर्स भी लगाए गए। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक ने कश्मीरी अवाम से भारत के यौम आजादी को हमेशा की तरह यौम स्याह के तौर पर मनाने का ऐलान कर रखा है। वादी में मुकम्मल हड़ताल है। गैर मुल्की सफीर भी पाकिस्तान के रंग में रंग गए। चीन, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी समेत दीगर ममालिक के सफीरों ने पाकिस्तानी कौम को यौम आजादी की मुबारकबाद दी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। पाकिस्तान में गैर मुल्की सफीरों ने भी यौम आजादी पर पाकिस्तानियों का खूब जोशो खरोश बढ़ाया। जर्मनी के सफीर और अमले ने पाकिस्तानियों को जश्न आजादी की मुबारकबाद देने का अनोखा अंदाज अपनाया। हाथ में कौमी परचम थाम कर दिल दिल पाकिस्तान गुनगुनाया और पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। तुर्की ने भी जश्न आजादी पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और तुर्की के परचम की तस्वीर भी शेयर की। चीन के सफीर ने यौम आजादी की मुबारकबाद देते हुए पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। I use this opportunity to present my best wishes to the whole Pakistan nation on your Independence Day. My best wishes to our brotherly nation of Pakistan. ऑस्ट्रेलिया सफीर ने पाकिस्तानी कौमी लिबास ज़ेब तन करके सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों को आजादी की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान बेहतरीन दोस्त हैं। मुल्क भर की तरह कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर हिस्सों में भी जश्न आजादी भरपूर कौमी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। कोयटा में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब सूबाई असेंबली के सब्ज़दार में मुनक्किद हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गनी काकर। वतन अजीज को अमन, तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनाने के पुख्ता अज़म की तजदीद के साथ कोयटा समेत सूबे भर में 74वां जश्न आजादी कौमी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। सूबाई दारुल हुकूमत में दिन का बाकायदा आगाज 21 तोपों की सलामी से किया गया। जश्न आजादी के हवाले से परचम कुशाई की मरकजी तकरीब बलूचिस्तान असेंबली के सब्ज़दार पर मुनक्किद हुई, जिसमें सूबाई वज़रा और अराकीन सूबाई असेंबली समेत दीगर आला सिविल और फौजी हुक्काम ने शिरकत की। परचम कुशाई के बाद तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला जाम कमाल ने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमुदात और शायर मशरक डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की फिक्र को मशाल राह बनाकर हम पाकिस्तान को एक अजीम इस्लामी मुमलिकत बना सकते हैं। मैं और आप शायद उन कुर्बानियों से नहीं गुजरे जिन कुर्बानियों से हमारे अकाबरीन ने इस मुल्क को हासिल किया। शायद हम उस जिद्दोजहद का हिस्सा नहीं थे, लेकिन यकीनी तौर पे हमारे आप सब के आबा व अजदाद जो खासकर बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, खासकर कोयटा शहर से ताल्लुक रखते हैं, इन सब की एक बहुत बड़ी कारकर्दगी, इन सब का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के इस जिद्दोजहद में लगा। जाम कमाल का कहना था कि भारत पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए जो साजिशें कर रहा है वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। जब से पाकिस्तान का क़याम हुआ है, पाकिस्तान की दुश्मनी हिंदुस्तान के हवाले से हमेशा से चलती आ रही, और कोई भी दुश्मन किसी भी हवाले से हो, वो कभी अपने फरीक को एक अच्छे सूरत हाल में देखना नहीं चाहता। कोयटा में परचम कुशाई की एक और तकरीब गवर्नर हाउस में भी मुनक्किद हुई, जहां गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह खान यासीनज़ई ने परचम कुशाई की। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
ईरान, सऊदी अरब, दुबई, ताजिकिस्तान, जर्मनी, स्पेन, ब्रुनाई समेत दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी भी जोशो खरोश से यौम आजादी मना रहे हैं। नारों की गूंज में परचम कुशाई की गई और केक भी काटे गए। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम आजादी पर परचम कुशाई की तकरीब हुई। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले समेत शहरियों ने भी तकरीब में शिरकत की। तेहरान में पाकिस्तानी हाउस में परचम कुशाई की तकरीब हुई। ईरान में मुकीम पाकिस्तानियों और सिफारत खाने के अमले ने तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तानी सफीर रहीम हयात कुरैशी ने सदर मुमलिकत और वजीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए। बानी पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। ईरान के शहर जाहिदान में तैनात पाकिस्तान के कौंसल जनरल मोहम्मद रफी की सरबराही में मुनक्कदा परचम कुशाई की तकरीब में जश्न आजादी का केक भी काटा गया और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। पाक ईरान ताफ्तान इमिग्रेशन गेट पर पाकिस्तानी और ईरानी हुक्काम ने एक दूसरे को मिठाइयों का तोहफा दिया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में सिफारत खाना पाकिस्तान में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज ने कौमी तराने की धुन में परचम कुशाई की और इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तानी कौम मिलकर वतन अजीज को तरक्की की मनाजिल की जानिब गामजन करेगी। जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट में कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद ने परचम कुशाई की। जश्न आजादी का केक काटा गया। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। जद्दा में हम सब हैं पाकिस्तानी के उन्वान से जश्न आजादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए और केक काटा। दुबई में पाकिस्तानी सफारत खाने में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने नारे लगाकर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया। पाकिस्तान मौजूद की रवानी, पाकिस्तान मेरी जान जवानी। ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे में पाकिस्तानी सिफारत खाने में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई। शहरियों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। उन्होंने मकबूजा कश्मीर भारत के गैर कानूनी इक़दामात की मज़म्मत और कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को सलाम पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क में अमन, तरक्की और खुशहाली, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारत खाने में जश्न आजादी की तकरीब हुई। पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने केक काटा। स्पेन के शहर बार्सिलोना समेत दीगर शहरों में मुकीम पाकिस्तानी भी तकरीब में शरीक हुए। सिडनी में पाकिस्तानी स्कूल में भी जश्न आजादी की तकरीब हुई। बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन बाबिर अमीन ने यौम आजादी पर ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों और हम वतनों को यौम आजादी की मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि 14 अगस्त का दिन हमें बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। On the auspicious occasion of the 74th Independence Day of Pakistan, I wish to extend my heartiest greetings to the Pakistani community members. The Pakistan movement, led by our forefathers, was a hard-fought political struggle which eventually culminated in creation of an independent sovereign state for us. ब्रुनाई दारुल इस्लाम में यौम आजादी की रंगारंग तकरीब में पाकिस्तानियों की कसीर तादाद शरीक हुई। हाई कमिश्नर मेजर जनरल रिटायर्ड अब्दुल अजीज तारिक ने सदर पाकिस्तान और वजीर आजम के पैगामात पढ़कर सुनाए। आजादी की तकरीब में केक को भी काटा गया। फलस्तीनी क़यादत ईरान और तुर्की ने इसराइल और यूएई मुआहदे को मुस्तरद कर दिया। फलस्तीन ने मुत्तहिदा अरब अमारात से अपना सफीर वापस बुला लिया। हमास, जहाद इस्लामी, फलस्तीनी मज़ाहमती कमेटी और तहरीक आज़ादी फलस्तीन समेत पूरे मज़ाहमती महाज ने मुआहदे की शदीद मज़म्मत की है। मुआहदे को फलस्तीनी आवाम की पीठ में गद्दाराना वार के मुतरादिफ करार दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान मुआहदे पर फलस्तीन और ईरान की जानब से सख्त रद्द अमल सामने आया है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अपने बयान में कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान मुआहदे को मुस्तरद करते हैं। मुआहदा यरूशलेम, अक्सा और फलस्तीनी काज के साथ गद्दारी है। उन्होंने अपील की कि OIC और अरब लीग मुआहदे को मुस्तरद करने में किरदार अदा करें। फलस्तीन ने मुआहदे के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से अपने सफीर को वापस बुला लिया। हमास ने मुआहदा फलस्तीनी अवाम की पीठ में गद्दाराना वार के मुतरादिफ करार दिया है। फलस्तीनी मज़ाहमती महाज ने मुआहदे की मजम्मत करते हुए कहा कि अमारात ने फलस्तीनियों के खिलाफ सुहीनी जराइम पर इसराइल को इनाम से नवाजा है। फलस्तीन की इस्लामिक जिहाद मूवमेंट ने भी इस मुआहदे को हथियार डालने के मुतरादिफ करार दिया। UAE इसराइल मुआहदे का मकसद यरूशलेम को नवाजना है।
معاہدہ مظلوم فلسطینی قوم کے خلاف صہیونی دہشت گردی میں اضافے کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں لائے گا۔ ایران نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے معاہدے کو خطرناک قرار دیا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت نے کہا کہ UAE کا اقدام نہ صرف قابل مذمت بلکہ شرمناک عمل ہے۔ ترکی نے بھی معاہدے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امارات نے محدود مفادات کی خاطر فلسطینی کاز کے ساتھ غداری کی۔ پاکستان میں بھی متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے فیصلے پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ علماء کرام نے UAE اور اسرائیل کے معاہدے کو مسترد کر دیا۔ وہ لوگ جو اسلام کے ہمیشہ سے اور ازلی دشمن ہیں، جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، قرآن کا فیصلہ ہے اور اٹل فیصلہ ہے جس کے بارے میں کوئی دوسری رائے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ ان لوگوں کے ساتھ یہ معاہدے کیے جا رہے ہیں، امن کے معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ امن کا معاہدہ کرنا تھا تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھتے کہ انہوں نے امن برپا کہاں پہ کیا ہے۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک خبر ملی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے۔ غمگین ہیں اس بات پر کہ ایک مسلم ریاست جو ہے وہ ایک ناجائز بچے کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ پاکستان نے کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کیا، وہ پاکستان سے قبل بھی ناجائز بچہ تھا اور وہ آج بھی ناجائز بچہ ہے اور وہ آئندہ آنے والے کل بھی ناجائز بچہ ہوگا، اس کو کسی بھی صورت پر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ UAE نے اسرائیل کو تسلیم کر کے جہاں مظلوم فلسطینیوں کے پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، وہیں یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کے ہاں غیرت نام کی اب کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ یقیناً نو آبادیاتی نظام کے تحت عرب امارات میں اپنے من پسند لائے ہوئے حکمرانوں کے ذریعے اب تک اسرائیل کو پالا گیا، سنبھالا گیا، اور اگر کسی ایک آدھ ملک نے اسرائیل کے خلاف جانے کی کوشش کی تو اسرائیل نے طاغوت کی مدد کے ذریعے انہیں ناکو چنے چبوائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی، ملیشیا، پاکستان، ایران ایک نیا اسلامی بلاک بننے جا رہا ہے جس سے عرب عدم توازن کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس بوکھلاٹ کے اندر وہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو ان کے اپنے ہی چہرے کے اوپر ایک زناٹے دار تماچے کی طرح پڑے گا۔ 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف دوسرے روز بیٹنگ جاری ہے۔ پاکستان نے اب تک ساؤتھ ہیمپٹن ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں پاکستانی ٹیم کا آغاز اچھا نہ رہا۔ اوپنر شان مسعود 1 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ ان کے بعد کپتان اظہر علی 85 گیندوں پر صرف 20 رنز بنا سکے۔ 24ویں اوور میں میچ بارش کے باعث روک دیا گیا تھا، جس کے بعد جب میچ شروع ہوا تو عابد علی کریز پر آئے اور سب سے زیادہ 60 رنز بنائے اور کیچ آؤٹ ہوئے۔ پاکستان کی چوتھی وکٹ 117 رنز پر اسد شفیق کی گری، جنہوں نے 5 رنز بنائے۔ ٹیم کے 5ویں وکٹ 120 کے سکور پر گری۔ 11 سال بعد ٹیم میں آنے والے کرکٹر فواد عالم بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے۔ دوسرے روز کا کھیل بارش کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا تو بابر اعظم محتاط انداز میں 47 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف بیٹنگ جاری ہے، جبکہ پاکستان نے اب تک رنز بنا لیے ہیں۔ سچ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، کچھ دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔